Can you please define these underlined words? What are these underlined words? The, and, some, any, this. So determiners. These are determiners. Very nice. Wonderful. Who spoke? Sakshi. Sakshi. Very good, Sakshi. You are intelligent. Good, beta. So see, the words placed in front of a noun to determine the type and nature of a noun is called determiner. यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उसके टाइप को बताते हैं, आर कॉल्ड डिटरमिनर. क्या कहते हैं इनको? डिटरमिनर कहते हैं. वेल, now let us write down the definition of the word determiner. A word used before a noun to determine a word used before a noun to determine its type is called डिटरमिनर. क्या कहते हैं उसको? डिटरमिनर कहते हैं. या फिर सिंपली ऐसे कह सकते हैं, determiner is a word which is used before a noun to determine its quantity, number, और क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? क्वांटिटी, नंबर, एक्सेट्रा कर दो, कुछ नहीं करना. ठीक है, बस यहाँ पे लिखो a mobile, these books, some apples, some water, an orange, an apple, like this. लिखो.
Noted. Noted or not? Noted or not? Tell me. Yes, sir. आपकी Yes, आवाज sir. को क्या हो गया? हाँ ऐसे बोलना लाउडली. गुड. देखिए. Now write types of determiner. There are 5 types of determiner. Number 1, article determiner. Number 2, demonstrative. Number 3, possessive determiner. Number 4, quantitative. Number 5, numeral determiner. Note them down. Noted. Yes, sir. Good. See. Now article determiner. Determiners which tell about a noun being specific or non-specific. Are called article determiner.
these are as and the। यानी ऐसे डिटरमिनर जो किसी नाम के स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिकल डिटरमिनर कहते हैं। ये आर्टिकल डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं? an और the, right? And then now types of article determiner। There are two types of article determiner। Number one, definite article। Number two, indefinite। Definite article the, indefinite article and then an। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होता है? द होता है। और इनडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं? एंड अन। By the way, all the adjectives can be called determiner। सारे कैसे जितने भी adjectives होते हैं ना उनको हम क्या कह सकते हैं? determiner। यानी adjective का एक कह सकते हैं कि ये सब पार्ट है determiner। ओके, noted or not? अरे बोलो Done, yes sir। or no। हाँ तो बोल दिया अगर फटाफट से, मैं खड़ा रहता हूँ आपके चक्कर में। जाओ। That the is called definite article। It defines a noun as something specific। यानी ये क्या बताते हैं कि कोई नाम कैसा है? स्पेसिफिक है। यानी समथिंग यूनिक है या फिर प्रीवियसली मेंशन्ड है।
या फिर समथिंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर। ठीक है, नॉट फॉर यूज ऑफ आर्टिकल द। यूज ऑफ आर्टिकल द नंबर 1, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास लिव्स इन नीमराणा। तो ये टॉलेस्ट क्या है आपका? व्हाट इज दिस टॉलेस्ट? टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने आपको क्या बताया? दैट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सो आई हैव यूज्ड आर्टिकल द हियर, राइट। नेक्स्ट, बिफोर द names of religious books like the Ramayana, the Bhagavad Gita, the Quran, the Bible and so on. इसकी स्पेलिंग ठीक करो। टी है, ठीक है, ये कैपिटल है, ये ए नहीं, उसको हटा दो। भगवत गीता ऐसे है। Noted or not? Yes, sir. बोल दिया करो बच्चों, बोल दिया करो। Before historical monuments,
like the Taj Mahal, the Red Fort, number 4, for unique things which are only one of their type, यानी जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल the earth, the sun, the moon, before the names of direction, the east, the west, the south, the north. Before the names of newspaper, river, continent, gulf, mountain range, range, ocean, एग्जाम्पल लिख लोगे इनके. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गंगा, द यमुना, द यूरोप, द एशिया, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, माउंटेन रेंज, द हिमालयाज, ट्रेन, द राजधानी, द शताब्दी, द गरीब रथ, द जम्मू तवी, ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द इंडियन ओशन. लिख लोगे ना? लिखो फटाफट से.
Noted? Yes, sir. What are the examples given by you people? बताओ इनके एग्जांपल क्या क्या दिए हैं? इंग्लिश पेपर का बताओ, रिवर्स का बताओ, कनाडा का कॉन्टिनेंट का बताओ, बता जल्दी से क्या क्या एग्जांपल दिए हैं, या मैं ही दूं? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गंगा, द एशिया, द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मन्नार भी हो सकता है, द हिमालयाज, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंडियन ओशन। हो गया? अगला पॉइंट है बिफोर प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन। Like I saw a boy. Regular sentence with the boy was playing बैडमिंटन। क्या कर रहा था? बैडमिंटन खेल रहा था। यहाँ पर बॉय से पहले आ लगाया क्योंकि अनस्पेसिफिक था, और यहाँ पर बॉय आया तो मैंने कहा कि द लगा दिया क्योंकि आइडेंटिफाइड हो गया, स्पेसिफिक हो गया अभी हमारे लिए। अगला लिखाओ। Before an identified noun. Like the girl in blue shirt is my sister. यहाँ गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन इससे पहले दरगाह क्योंकि कैसी है? आइडेंटिफाइड है स्पीकर के लिए।
अगला लिखो, बिफोर अ प्रॉपर नाउन when we compare it with other proper noun like Kalidas is the Shakespeare of India। यानी शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, फिर भी मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या किया है, कालिदास को क्या किया, कंपेयर किया शेक्सपियर से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, द लगा देते हैं। अगला लिखो, बिफोर अ कॉमन नाउन when it indicates its whole class। जो अपनी पूरी श्रेणी को इंडिकेट करता है। That the dog is a faithful animal। ऐसा है, फेथफुल एनिमल है, यानी सारे डॉग की बात हो रही है यहाँ पे, एक की नहीं हो रही। नोटेड। नोटेड और नॉट? अरे बोलो, नोटेड और नॉट? Yes, sir. बोलते क्या नहीं तुम लोग हैं? अच्छा, डू वन थिंग, लीव ब्लैंक 5 और 7 लाइन्स, ओके? 5 से 7 लाइन ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि एक दो रूल अगर याद आएगा तो बीच में करवा दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। होप सो दैट ऑल आर कंप्लीटेड। इफ यू कैन रिमेंबर सम रूल्स यू कैन टेल मी। When you write down them in fair note book na, leave 5 to 7 blank lines before starting the second type of article determiner। Second is indefinite article। कौन कौन से थे? आर, और आर।
देखो यूज ऑफ अ is used before a countable before a singular countable noun which sounds as consonant. यानी ऐसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका साउंड कैसा निकलता है, कॉन्सोनेंट के जैसा निकलता है. फॉर एग्जांपल अ पेन. कैसा है पेन? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है. अ मार्कर, अ बुक. ओके. अगला लिखो is the weak form of one. It is used before unidentified and unspecific nouns which are not mentioned previously. For example, I saw a dog. यानी डॉग को जानता नहीं क्या डॉग है, अनस्पेसिफिक होते हैं. I gave my water bottle to a man. यानी मैंने किसी एक आदमी को दे दी थी. तो ये मैन उसके लिए कैसा? अनआइडेंटिफाइड है. ठीक है, यानी कि स्पीकर उसे जानता नहीं है. Noted?
it is used before the unit of measurement, यानी मेजरमेंट यूनिट से पहले कैसे होते देखिए, जैसे bananas are sold ₹30 a kg, यानी बनाना 30 रुपए पर केजी बेचे जाते हैं। तो अ केजी का मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा 1 kg। मैं बता था ना कि ये 1 की वीक फॉर्म है, आप इसके प्लेस पर 1 भी रख सकते हो। देखो, it is also used before unidentified proper noun, अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर नाउन से पहले कैसे यूज करते देखिए, मोहन इज standing at the gate, he wants to see you, यानी अमोहन का मतलब है यहाँ पर कोई मोहन, क्या है, कोई मोहन जो गेट पर खड़ा हुआ है और वो आपसे क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो यहाँ पर नाम तो उसने पूछ लिया, लेकिन फिर भी वो मोहन उसके लिए कैसा है, अनआइडेंटिफाइड है। और अनआइडेंटिफाइड यानी अननोन है, अननोन है तो उसने क्या यूज कर दिया, स्पीकर ने आई यूज कर दिया। फाइन, सो दिस वे यू यूज आर्टिकल अ बिफोर अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर नाउन्स, राइट। See, now the best concept to differentiate between a and an, because it is a complicated rule, students get confused whether they should use a or they should use an. So there is one thing that can help you a lot. See, is used before consonant sound. ऐसे नाउन जो अनआइडेंटिफाइड हैं, सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं, और उनका साउंड कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, हम यूज करेंगे आ। ऑलराइट, ये तो रहा बुकिश फॉर्मूला। अब मैं देसी फॉर्मूला पे आता हूं। तो देखिए, आ का साउंड जैसे ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है क से लेकर यहाँ तक के बीच में, वी यूज आ। क्या यूज करते हैं, आ, ठीक है। अब देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी टू इट, लेट्स टॉक अबाउट अन, ऐसे वर्ड्स, यानी अगर इंग्लिश का फॉर्मूला देखें तो ये होगा बिफोर वोवल साउंड, इससे पहले वोवल साउंड से पहले। ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड है। ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग ओनली वोवल, मैं आपसे ओनली वोवल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ओनली वोवल कहते ही मैं आपके रूल को डिफाई कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, दीज ऑल आर वोवल्स। व्हाट आर दे, वोवल्स हैं। आप कहते हैं कि इनके पहले हम क्या लगाएंगे, गलत तरीके से लिख दूं, मैं यहाँ लिखना चाहिए इसको। देखो, ये क्या होते हैं, ए, ई, आई,
ओ यू, ये सारे क्या है, ये सारे वोवल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये वोवल्स जो है कई बार कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं। और जब ये कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं तो तुरंत इनके पहले अन अलग करके अ लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे निकलवाऊंगा अभी, आई सॉ 1 रुपी नोट, क्या भरोगे दोनों में से, आपके पास चॉइस है ए और एन, बताइए क्या भरोगे। अगर ये समझ आ गया ना, दैट मीन्स मेरा जितना भी किया कराया वो है ना काम सारा सक्सेस हो गया, ये समझ लो। बताओ क्या फिल करोगे, आपके पास ए भी है और एन भी है। सर ए। ए, वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू फेवर एन, आप में से एन कितने बोल रहे हैं, आप में से एन कितने बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है एन, नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप जीनियस है, बहुत बढ़िया। यानी कि ए आएगा, क्यों आएगा ए, अब मैं आपको बताता हूँ। ए से देखो, अगर आप बुक वाले उससे चलते तो आपको लगता है कि एन आएगा, क्योंकि ओ आ गया, क्या आ गया, ओ आ गया, और वो क्या है आपका, वो वोवल है। लेकिन मैंने इसके आगे साउंड लगा दिया, इसका साउंड क्या निकल रहा है, अगर इसका साउंड लिखेंगे तो ये निकलेगा वन, तो क्या वह वोवल है ना, वो वोवल नहीं है। और ये जो वह है ना, ये वाला जो वह है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखिए वो इस कैटेगरी में आ रहा है या इस वाली में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ऊपर वाली में नीचे वाली में, बताइए। ये जो वह है ये वाला, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, ये इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, ऐसे वर्ड जिनका साउंड क से लेकर ज्ञ तक जाता है हम यूज करते हैं ए, क्या यूज करते हैं ए। और ऐसे वर्ड जिनका साउंड जो है वोवल में जाता है, यानी कि लिखा नहीं मैंने ना, अ से लेकर अ तक, तो हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। अब देख लो कि इसका जो साउंड है ना, ये जैसे कि था ये वन है, ठीक है। अब इस वन का जो व है ना, वो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, देखिए अगर इसमें आएगा तो एन आएगा, ऊपर वाली में जाएगा तो ए आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और समझाओ एक दो एग्जांपल देके। साक्षी, हेमंत, यस सर। क्लियर हो गया। नेहा जसवीर, नेहा जसवीर, सर। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक, चलो देखिए फिर अब, ये नोट कर लो फटाफट, ये आपको नोट करना है। देखो यूज ऑफ अन, तो देखिए अलाइक ए and is also used before singular countable noun, which sounds
एज वोवल, यानी कि एक ही तरह एन का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिनका साउंड किसमें निकलता है, वोवल में निकलता है। किसमें निकलता है, वोवल में। शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, एन इज इक्वल टू ऐसे लेकर के, ठीक है। और दूसरा लिख लेना, एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। किससे पहले होता है, वोवल साउंड के पहले, ठीक है। लाइक आई नीड एन अम्ब्रेला। क्या चीज चाहिए, अम्ब्रेला। देखिए कितना वेरिएशन आ जाएगा अगर ये यहाँ पर अम्ब्रेला आ गया, ठीक है, एन अम्ब्रेला। और दूसरा मैं ये कहूँ काई वेंट टू, अब क्या भरोगे, अब क्या भरोगे, देखो यहाँ भी यू आया है, यहाँ भी यू आया है, अब इसमें क्या भरोगे, आई वेंट टू ए। वेरी गुड, क्यों ए सर बताओ, ए। क्यों भरेंगे ए बताओ। सर इसमें ये की साउंड आ रही है। यूनिवर्सिटी है, क्या है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी है तो यू किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा। जब इसमें नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली पहले वाले में जा रहा होगा, तो क्या आएगा, ए आएगा, राइट। चलो, इट्स एनफ फॉर द डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।